نوعیت کا آدمی جس کو پاکستان کے عوام نہیں جانتے، وہ اس حکومت کا سپوکس پرسن ہے۔ پنجاب الیکشن جو ہیں وہ EVM کے اوپر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن حکومت کی طرف سے جو بھی اسسٹنس چاہیے وہ حکومت فراہم کرے گی۔ مہنگائی سے آپ کی جان چھوٹنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، عمران خان سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ سندھ حکومت نیک نیتی سے چاہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو مزید امپاور کیا جائے۔ بلدیاتی نظام سندھ کو ڈیمالش کرنے کا ایک ارادہ ہے۔ جب آتے ہو خیبر پختونخوا میں تو منہ سنبھال کے بات کرو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ اب ملک میں الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج تو وزیر اعظم عمران خان کی کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کو ہدایات بھی دیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر جھگڑا تھا، وہ اب جھگڑا آگے بلدیاتی انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخاب کے لیے قانون منظور ہوا، وہاں کی اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ ادھر پنجاب حکومت نے اب EVM کے ذریعے بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ طریقہ کار کا تعین کرنا بالکل ہمارے اختیار میں ہے۔ پہلے سیاسی جھگڑے تھے، وہ الیکشن کے حوالے سے ہوں، وہ EVM کے حوالے سے ہوں، وہ سیاست کے حوالے سے ہوں، لیکن اب یہ جھگڑے قومی سلامتی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 6 دسمبر کو ہونا تھا، لیکن آج اپوزیشن نے اعلان کیا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ بڑے سنجیدہ مسائل ہیں اور ان پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے روبرو ہیں جناب سردار لطیف خان کھوسا صاحب، سابق گورنر پنجاب اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما۔ بہت شکریہ سردار صاحب، بہت وقت کے بعد آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، بہرحال شکریہ۔ اور ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب سابق ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی مرتضی جاوید عباسی صاحب نے، اور ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سید امین الحق صاحب نے، وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور MKM پاکستان کے رہنما۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا امین الحق صاحب۔ اگر سندھ سے بات شروع کر دی جائے امین الحق صاحب تو میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ سندھ اسمبلی میں بلدیاتی انتخابات کا قانون منظور ہوا، آپ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن آج سعید غنی صاحب نے کہا کہ ہم تو بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیں پراچا صاحب، MKM پاکستان کا واضح دو ٹوک موقف ہے کہ یس، ہر صورت میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کو یقینی بنایا جائے، اور ویری فرسٹ ڈے ہم اس کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم میرا خیال ہے ماضی میں مسلسل یہ آواز بلند کرتے رہے ہیں کہ 2013 کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا تھا، اس میں وہ تمام اختیارات جو کہ ایک منتخب میئر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ایک ترقی پذیر ممالک کے ہاتھ میں، یہ ترقی یافتہ ممالک کے ہاتھوں میں، میئر کے ہاتھوں میں تھا، وہ تمام اختیارات چھین لیے گئے تھے۔ مثلا آپ کو پتا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی، کوڑا کرکٹ اٹھانے کا بھی تمام اختیارات میئر سے لے لیے گئے تھے۔ اسی طرح ان کے فائنینشیل جو انہیں پیسے ملنے چاہیے تھے، وہ چیزیں بھی انہوں نے تمام جگہوں پہ جسے کہتے ہیں کہ نہ صرف کم کر دیے تھے بلکہ کچھ جگہوں پہ تو بالکل ختم کر دیے گئے تھے۔ سونے پہ سہاگا کیا ہوا کہ یہ 2021 کا جو جسے کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ لایا گیا، جسے پیپلز پارٹی بڑے زور شور سے آواز بلند کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ صرف MKM نہیں بلکہ MKM کے ساتھ اس شہر میں وہ تمام سیاسی پارٹیاں جن کے پاس اگر 4 لوکل گورنمنٹ کونسلر کی سیٹ تھی یا 8 کونسلر کی سیٹ تھی، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا PMLN ہو یا PTI ہو یا کوئی بھی سیاسی پارٹی، تمام لوگ اس کی مخالفت کر رہے۔ کیوں مخالفت کر رہے؟ ریزن یہ کہ وہ تمام اختیارات جو 2013 میں دیے گئے تھے وہ بھی ان سے چھین لیے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سارے جگہوں پر جسے کہتے ہیں بیسک ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے یا بیسک ہیلتھ کی بات ہوتی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی سے چھین کر سندھ حکومت کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج پچھلے 30 سال سے بلدیہ عظمیٰ کراچی چلا رہی تھی، جو کہ پاکستان کے اچھے انسٹیٹیوشن میں شمار ہوتا تھا۔ کراچی کا 3rd بیسٹ میرٹ بیسڈ انسٹیٹیوشن تھا، اس کو بھی چھین لیا گیا۔ اور اب کیا صرف اختیارات جسے کہتے ہیں ایک اختیارات جو ہے جو میرا خیال ہے بلدیہ عظمیٰ کو دیا گیا، وہ کیا ہے کہ وہ ٹوائلٹ بنا سکتی ہے اور ٹوائلٹ کو مینٹین کر سکتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ فرمائیے، آپ ساری سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں، دوسری سیاسی جماعتوں کی۔ مصطفیٰ کمال صاحب پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ، انہوں نے تو کل اعلان کر دیا کہ وہ عدالت جائیں گے، تو ویئر سٹینڈز MKM؟
यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, एमकेएम पाकिस्तान एक जमहूरी सियासी जमात है जो अपने अवाम के दरमियान मौजूद रहती है। हमने क्या फैसला किया? सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिंध गवर्नमेंट का जो 2021 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट था इसको मुस्तरद किया। इसके साथ ही साथ हमने फैसला किया यस हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। इसके साथ साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी गालिबन 11 दिसंबर को बुलाने का ऐलान कर दिया गया। हमारी ख्वाहिश होगी कि तमाम लोगों को ऑनबोर्ड, इस शहर में जो भी एनजीओ हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं और जो लाइक प्रेस क्लब है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन है, इन तमाम लोगों को ऑनबोर्ड लिया जाए और एक ही मौका रखा जाए क्या कि 2021 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट को मुस्तरद करना है। इसके साथ साथ एमकेएम पाकिस्तान ने, चूंकि अवामी जमात है, अवाम के दरमियान रहती है, तो आज से हमने पूरे शहर में मुजाहरे का प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। आज पहला मुजाहरा डीएमसी सेंट्रल के सामने किया गया, कल हैदराबाद में होगा, परसों अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के सामने होगा और फाइनली हमने बिल्कुल इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और हमने इसे आई टू आई, मैं समझता हूं कि ये बड़े ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से सिंध हुकूमत शहरी पे कब्जा करने के घिनौना मंसूबा है। और आप ये देखिए क्या किया इन्होंने इस अगर लोकल गवर्नमेंट एक्ट में प्राचा भाई अगर आप देखेंगे तो दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कर दी। नंबर 1 क्या किया कि कराची डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो रूरल एरिया था उसको भी मेट्रोपॉलिटन में शामिल कर दिया गया। दूसरी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझता हूं कि इन्होंने यूसी चेयरमैन की जो मुंतखब होने के वोटर की तादाद है उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन रखा है। लाइक 40,000 से लेकर 75,000 तक के वोटरों पर एक यूसी चेयरमैन मुंतखब होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर लियाकताबाद होगा, लालू खेत होगा, शाह फैसल होगा तो वहां पे 75,000 पे यूसी चेयरमैन होगा और अगर रूरल एरियाज होगा तो वहां पे 40,000 पे मुंतखब किया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 75,000 वोट लेने वाला यूसी चेयरमैन और 40,000 वोट लेने वाला बराबर होगा। और जब वो मेयर के उस पर वोट डाल रहा होगा तो आप अंदाजा कर सकते हैं क्या सूरत हाल होगी। इसके साथ इधर रुकिएगा सरदार साहब, आपने बात सुन ली, रिजर्वेशन सुन ली। अगर मुजाहरे होते हैं और अदालतों में जाते हैं तो फिर तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। दैट मीन्स के फिर सिंध में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात तो उस वक्त तक नहीं रुकते ता वक्ते के अदालत उसको कोई इंजंक्टिव ऑर्डर ना कर दे, मुअत्तल ना कर दे। और आज तक कभी ये नहीं हुआ कि लेजिस्लेशन को कभी अदालत ने मुअत्तल किया हो। हाँ, हतमी तौर पर बिलाखिर अगर कोई फैसला होता है तो उसकी रोशनी में तो फिर होगा, लेकिन जहां तक लेजिस्लेचर की हक है कानून साजी का, अगर आप देखें आर्टिकल 7 में, तो आर्टिकल 7 में रियासत जो है, रियासत की तारीफ अवाम है और अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए कानून साजी करते हैं। उसमें ना अदलिया आती है, ना उसमें कोई और इदारा आता है, ना हुकूमत आती है। अब लेजिस्लेचर यानी सूबाई असेंबली ने ये बिल पास किया है जो रियासत जिसको आप कह सकते हैं। तो रियासत में मुदाखलत तभी हो सकती है अगर आर्टिकल 8 के मुतसादिम कानून साजी यानी बुनियादी हकूक को अगर पामाल किया गया हो। इसमें कौन सा बुनियादी हकूक पामाल हुआ है? देखें, आर्टिकल 140A के मुताबिक एग्जैक्टली सरदार साहब, मैं सरदार साहब यही पूछना चाह रहा था कि उधर से कंटेंशन आ रही है कि जो नया बिल आया है ये आर्टिकल A140 140 आर्टिकल की खिलाफ वर्जी है। नहीं, 140A में तो लाजिम था। देखें, किसी ने भी बदकिस्मती से नहीं इलेक्शंस करवाए। ये वैक्यूम होना ही नहीं चाहिए था, खला होना ही नहीं चाहिए था। और ये चूंकि सारा डॉलड्रम्स में हुआ, चूंकि जब से पीटीआई की हुकूमत आई इन्होंने कहा कि वो जो हमारा केपीके का था, जो लोकल गवर्नमेंट हमने जो बनाया था, हम इसको जो है सारा करें। इन्होंने सारे के सारे एग्जिस्टिंग लोकल गवर्नमेंट थे लॉज, उन सारों को मुअत्तल कर दिया। चूंकि सारे इनके मुतहारिब थे, मुखालिफ थे, इन्होंने सारी की सारी लोकल गवर्नमेंट्स को जो है डिसॉल्व करके इन्होंने एक ऐसी कैफियत की कि कचरा गंद सारा जो है वो फैल गया सारे शहरों में। लेकिन अब पंजाब में सरदार साहब, आप गवर्नर भी रहे हैं, अब पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कल ही प्रॉम्प्टली कहा कि जी तरीका कार अख्तियार करना हमारा आईनी अख्तियार है। अब ये क्लैश फिर पंजाब में भी कोई अदरवाइज रिजल्ट देगा?
देखें पराचा साहब, ये नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक, अभी वोटिंग मशीन की अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। अभी कल तो बिल दस्तखत किए हैं सदर साहब ने, अभी उसको खरीदने में अरबों रुपया चाहिए, अरबों रुपया चाहिए। फिर आपको स्टाफ को उसको ट्रेन करने के लिए आपको वक्त चाहिए, फिर आपको उसके सारा जो है उसके लेआउट के लिए बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। ये बल्दियाती इलेक्शन तो आया चाहते हैं, इन पे तो ये इतलाक हो नहीं सकता है। और ये बुनियादी फरीजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो शफाफ इलेक्शन करवाने की आर्टिकल 218 और आर्टिकल 220 में उनकी जिम्मेदारी है, वो पाबंद नहीं है। ये आईनी उनका फरीजा है, आईनी इख्तियारात हैं। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। अब अजीब सी सूरत हाल बनी है कि सिंध में कानून पास हुआ बल्दियाती इंतखाबात का, वहां ईवीएम के बगैर है। पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ इंतखाब कराने का फैसला किया गया है। तो ये एक मुल्क में दो पाकिस्तान बन गए, एक पाकिस्तान में दो पाकिस्तान बन गए। देखिए जी, ये इस हुकूमत का एजेंडा ही एक नया पाकिस्तान था, एक तरक्की याफ्ता तरक्की करने वाले पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके एक ऐसा पाकिस्तान बनाना कि जहां मईशत तबाह हो, बेरोजगारी और महंगाई से लोग मर रहे हों। तो ये एक कौमी इशू था जी। इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होते हैं, एतराजात होते हैं, तो इस हुकूमत के पास ये बड़ा सुनहरी मौका था। सारी सियासी जमातें बैठ के कंसेंसस करती और ये इलेक्शन कमीशन को मैंडेट दिया जाता ताकि अगर किसी को इबाम था या किसी हवाले से किसी को कोई इतराज था तो वो दूर भी हो जाता। तो हुकूमत ने ये चीजें बलडोज की। हुकूमत ने जिस तरह स्पीकर को मैं कहता हूँ बेइज्जती की, उनसे लेटर लिखवा के और दूसरे दिन जाके वो जॉइंट सेशन अनाउंस कर दिया। नेगोशिएशंस भी नहीं हुई, कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश भी नहीं हुई। अब सूरत हाल ये है कि ये तो इसी तरह ही था जो हुकूमत चाह रही थी। लेकिन ये फरमाइए अब्बास साहब, ये फरमाइए अब्बासी साहब, ये फरमाइए, अब पंजाब में हुकूमत ने फैसला किया है कि बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से होंगे। आपकी पार्टी क्या करेगी? मुखालफत करेगी, अदालत जाएगी, क्या सोच रहे हैं? मुखालफत करेंगे, अदालत भी जाएंगे। इस निजाम जिसमें सियासी जमातों को, हमारी जमात वहाँ 50% है, चंद वोट्स के फर्क है। और अगर एक इतनी बड़ी सियासी जमात जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको आप कंसेंसस नहीं करते, एतमाद में नहीं लाते, तो इसका मतलब है हुकूमत की बदनीति है। देखिए 2017 में जब ये 2017 का इलेक्शन एक्ट आया था तो पीटीआई की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की जमात, पीटीआई की जमात, सारी जमातों का कंसेंसस था उस पे और उस पे सारी सियासी क़यादत को एतमाद में लिया गया था। हर एक की बात सुनी गई, जो उनके इमाम थे उनको मुतमईन किया गया। ये हुकूमत तो कंसेंसस करना ही नहीं चाहती। ये हुकूमत चाहती है कि ये सारी सियासी जमातें बाईकाट करें, ऐसे हालात बने और हम अनअपोज आ जाए। ये इनका मंशूर है। वेल सेड अब्बास साहब, इधर रुकिएगा, मैं ब्रेक ले लेता हूं नाजरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सरदार लतीफ खान खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, अख्तियारात की बात कर रहे थे। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब भी डेप्टी स्पीकर रहे हैं नेशनल असेंबली के, इन तमाम अमूर को जानते हैं। और सैयद अमीनुल हक साहब तो आईटी के वफाकी वजीर भी हैं। मैं अख्तियारात के हवाले से जरूर बात करना चाहता हूं क्योंकि सैयद अमीनुल हक साहब को उस काबीना की कमेटी का भी रुकन बनाया गया है जो इलेक्शन कमीशन के साथ मामला देख रही है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। काबीना का इजलास होता है, इजलास में फिर मामलात ईवीएम के हवाले से उठाए जाते हैं। वजीर इत्तलात आकर कहते हैं कि जी अगर तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए इंतखाबात करवाए तो सिर्फ तब ही पैसे मिलेंगे। ये इलेक्शन का दाना पानी बंद करने का सोच रहे थे या सोच रहे हैं? देखिए, यही बड़ी बदकिस्मती है। इनका ये तरीका ही हुकूमत करने का यही है।
یہ چور ڈاکو کہہ کے، دہشت پھیلا کے، خوف دے کے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کبھی نیب کو استعمال کرتے ہیں. اب چونکہ الیکشن کمیشن نے جو ڈسکے والی فائنڈنگ دی ہے اس سے ان کو بالکل ایکسپوز کر کے رکھ دی ہے کہ حکومت کس طرح کا الیکشن چاہتی ہے. حکومت من پسند نتائج چاہتی ہے. اسی لیے الیکٹرانک اب جو مشین انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے، الیکشن کمیشن کے ذرا اس پر تحفظات دیکھیے گا. وہ سارے کے سارے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس میں انٹرسیپشن ہو سکتی ہے، اس میں چپ کے ذریعے سے آپ نتائج کو بدل سکتے ہیں، آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کی وہ ایکسپوز ہوتی ہے. اس سے بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے جس کا اظہار کیا ہے. اچھا، پھر اب انہوں نے چلے بلڈوز کر کے جوائنٹ سیشن میں ایک قانون پاس کیا، وہ بھی یہ نہیں کر سکتے تھے جوائنٹ سیشن میں، لیکن بعد اب انہوں نے کیا جوائنٹ سیشن میں بلڈوز کر کے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو آئین سے متصادم قرار دے دیا گیا، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے شفاف الیکشنز کروانا، یہ آئینی ذمہ داری ہے. تو لیکن کس نے آئین کے متصادم کس نے قرار دیا؟ کسی عدالت کا تو ایسا ورڈکٹ نہیں ہے، اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں. آ جائے گا پراچا صاحب، آ جائے گا وہ ورڈکٹ بھی آ جائے گا. لیکن مجھے بتائیں کہ آئین کی شک جب یہ ذمہ داری جو ہے شفاف الیکشن کروانے کی کلیتاً ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیتی ہے، کلیتاً ذمہ داری. سو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. حکومت نے اگر دخل مداخلت کرنی ہو الیکشن پروسیس میں، الیکٹورل پروسیس میں، تو حکومت تو ایک فریق ہے. تو کیا آپ فریق کو جو ہے یہ سبقت دیں گے کہ وہ الیکشن کمیشن پر بھی حاوی ہو جائے اور مسلط کرے؟ سو الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری آئین کے تحت ہے، قانون کے تحت نہیں. آئین کے اوپر قانون ماورا نہیں ہو سکتا ہے. آپ ایک آئینی عہدے پر بھی آپ ایک آئینی عہدے پر بھی رہے ہیں، گورنر رہے ہیں آپ. میں ذرا فنڈنگ کے بارے میں آئینی طور پر جاننا چاہ رہا ہوں کہ آئینی طریقہ کیا ہوتا ہے جب آئینی ایک ادارے کو فنڈ دینے ہوتے ہیں تو حکومت کی ڈسکریشن ہوتی ہے یا کوئی آٹومیٹک میکنزم ہے کہ یہ چونکہ آئینی ادارہ ہے اس کو اتنے پیسے دے دیے جائیں؟ نہیں، دیکھیں بالکل بڑا واضح ہے اس میں. وہ آئینی ادارہ ہے، اس کے فنڈز پر قدغن حکومت نہیں لگا سکتی، حکومت اسے مفلوج نہیں کر سکتی، حکومت اس کو اپنے تابع نہیں کر سکتی. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آئینی ادارے کو جس نے شفاف الیکشن کروانے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، جس نے ریاست کے، کیونکہ آرٹیکل اگر 7 دیکھیں تو ریاست الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے وہ ادارے ہیں جہاں سے مترشح ہوتی ہیں حکومتیں، حکومت نہیں ہے. سو یہ ریاست کو جو ہے جس نے بنانا ہے، جس ادارے نے، اس کو مفلوج کر سکتا ہے کیا حکومت؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت اثر انداز ہو رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر، اسے مفلوج کر رہی ہے، اسے تابع کر رہی ہے، اور یہ آئین کی روح کو مجروح کر دیتی ہے یہ بات. سو اس لیے یہ تو ذہن سے نکال دیں کہ جب بھی یہ عدالت میں جائے گا، اس قسم کی دھمکی جو دی ہے فواد چودھری صاحب نے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور یہ اگر اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ اداروں کو اس طرح مفلوج کریں گے اور اپنے تابع کر لیں گے، تو پھر یہ جمہوری حکومت نہیں ہے، یہ فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ جمہوری حکومت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی حکومت پھر اپنے آئینی حدود و قیود کے اندر رہ کے یہ بات کر رہی ہے. آپ بالکل ان کو جو ہے فنڈز کو نہیں روک سکتے. ایک آئینی ادارے کے جو فنڈز ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ان کے اخراجات ہیں، یہ وہ آئین کے تحت جو ادارہ چل رہا ہے اس کو مفلوج نہیں کر سکتے. باقی کی مشین میں ذرا سید امین الحق صاحب کمیشن آف پاکستان پر میں سید امین الحق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ باقاعدہ کابینہ کے اجلاس کے بعد اعلان ہوا، تو کیا کابینہ میں واقعی فیصلہ ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فنڈز بند کر دیے جائیں؟ کیونکہ پھر دوسرے دن شبلی فراز صاحب، وہ بھی وزیر ہیں، انہوں نے کوئی اور بات کر دی تھی. چونکہ آپ کابینہ کے ممبر ہیں، آپ کابینہ میں موجود تھے، کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی وہاں پر؟ دیکھیے پراچا صاحب، میرا خیال ہے کہ غیر اخلاقی عمل ہوتا ہے کہ میں کابینہ کی مکمل بات کو ڈسکس کروں. ہاں، میں جو بات کل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب نے کہا، میں اس کی بات کو اون کرتا ہوں کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ عوام و تفہیم کے ساتھ
जिसे कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो तमाम रिक्वायरमेंट जो वो डिमांड करेंगे उनको दी जाएगी। और उसके साथ साथ हमारी ख्वाहिश होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन तमाम प्रोसेस को लाए, चाहे वो ईवीएम का मामला हो या आईवीएम इंटरनेट वोटिंग फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज हो, वो फ्रंट से लीड करे और उसके तमाम टेक्निकल सपोर्ट जो होगी जो मिनिस्टर ऑफ आईटी की तरफ से होगी रिगार्डिंग विद आईवीएम, हम उनको मुकम्मल देने के लिए तैयार है। आपके इल्म में कि वज़ीर आज़म साहब ने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है जिसमें मुझे भी उसका मेंबर नामजद किया और मेरी जिम्मेदारी होगी एज ए मिनिस्टर ऑफ आईटी के आई वोटिंग के हवाले से उन तमाम मामला पे जिसे कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ मजबूत किए जाए। ये जो कमेटी जिसके आप भी मेंबर हैं, इसकी क्या मैंडेट है, इसकी क्या जिम्मेदारी है, इसको क्या काम सौंपा गया है? देखिए, इस पे 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। नंबर 1 कि अगर जो भी इसकी डिमांड आज ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मसलन मैं समझता हूं कि अच्छी खुशाइंद बात ये है कि आज से मेरा ख्याल चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक लेटर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर को लिखा गया, उसमें उन्होंने 3-4 चीजों का डिमांड किया। नंबर 1 कि ईवीएम के हवाले से उन्होंने कहा है कि लगभग 56 बिलियन यानी 56 बिलियन की लगभग लागत एक्सपेक्टेड है और उन्होंने इसको डिमांड किया है। इसी तरीके से आईवीएम इंटरनेट वोटिंग फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से उन्होंने कहा है कि 3.6 बिलियन मेरा ख्याल इसकी जरूरत पड़ सकती है और डाटा सेंटर बनाने की बात की है। इसी तरीके से ईवीएम मशीन अगर आ जाती है तो उसके स्टोरेज की बात की गई है और उस हवाले से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि तमाम इंतजामात मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर या वो जो कमेटी बनी हुई है उसकी जिम्मेदारी बनती है। यस, हमने बिल्कुल इस तमाम चीजों को कल बैठे, मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर मैं मौजूद था, फारूक नसीम साहब मौजूद थे और फिर शिबली फराज की क़यादत में जिसे कहते हैं कन्वीनरशिप जो कि वो है उसके में हमारी एक मीटिंग हुई और हमने भी फैसला किया कि यस, हम तमाम जगहों पर जो डिमांड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की होगी हम उसे फैसिलिटेट करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। चले, अच्छा है आपने वजाहत कर दी। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, ये कमेटी का आप क्या समझते हैं, क्या किरदार अदा कर सकती है? क्योंकि आजम खान सवाती साहब उसमें हैं तो उन्होंने तो कहा था कि इलेक्शन कमीशन को आग लगाई जाए, फिर उसमें अटॉर्नी जनरल साहब हैं जो सेनेट इलेक्शन के मौके पे वो आइन की तशरीह कराने चले गए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आइन बिल्कुल खुफिया वोटिंग की बात कर रहा है। डॉक्टर बाबर अवान साहब हैं, आप जानते हैं वो क्या सोचते हैं। तो ये कमेटी का आपको बतौर अपोजिशन मेंबर क्या किरदार नजर आता है? देखिए जी, ये तो पहली बात ये है कि जो हुकूमती वफाकी कैबिनेट के मुद्रा है जी उन्होंने जो अल्फाज कहे इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, कमीशन के हवाले से और फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने तहरीरी माफी भी मांगी है। आप मुझे बताएं, अगर हुकूमत की ये बदनीति नहीं थी तो ये वो मुतनाज़ा तरीन लोग इस कमेटी में शामिल इन्होंने क्यों किए? नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत अगर आज भी मुखलिस है, चले सियासी क़यादत को इत्मीनान में नहीं लिया तो ये मैंडेट दे ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? क्या ये मॉनिटरिंग करना चाहते हैं? क्या ये अपनी मर्जी की मशीन लाना चाहते हैं? क्या ये कोई ऐसा निजाम लाना चाहते हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो कारकर्दगी और इनकी न्याय को सामने रखने के बजाय कोई टेक्निकल तरीके से ये चोरी कर सके? तो ये बदनीति है हुकूमत की। जो कैबिनेट में बात हुई, कैबिनेट के बाद जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने बात की, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फंड्स की बात की। इनको शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को कि इस हद तक इदारों पे अपना कंट्रोल या फिर कौमी इदारों या ऑटोनमस बॉडीज को ये अपने जेरे कंट्रोल करके क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये देखें, अगले इलेक्शन को 1.5 साल पहले इस हुकूमत की नीयत और इनके इक़दामात ने मुतनाज़ा बना के रख दिया है और ये जो अभी भी जो बुलडोज किया है लेकिन उस काबीना इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक नुक्ता आया था, एक मौक़िफ़ आया था। उसके बाद वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने बिल्कुल वादे कर दिया कि पैसे भी देंगे। अभी भी आपके सामने सैयद अमीनुल हक साहब वफाकी वजीर हैं, वो भी कह रहे हैं कि पूरी सपोर्ट देंगे, पैसे देंगे जितना इलेक्शन कमीशन चाहेगा। ये भी तो एश्योरेंसेज है ना? सुने, ये कोई इंश्योरेंस नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, वफाकी काबीना का कोई काम नहीं है कि वो एक इलेक्शन कमीशन पे पाबंदी लगाए, उस पे सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस लगाए या धमकियां दे। ये तो उनके लिए मैसेज था। मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने उन 2 वज़रा जिन्होंने एक कौमी इदारे के एक जिम्मेदार चीफ कमिश्नर के किरदार से लेके उसके खिलाफ जो बातें की और फिर माफी नामा लिख के दिया इलेक्शन कमीशन में, उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये खुद पूरी प्लानिंग से जो है हर काम करते हैं। इन्होंने ये मैसेज दिया है
तो ये अगर इलेक्शन कमीशन की फंडिंग रोकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, खोसा साहब ने उसकी वजाहत की, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मकसद ये बात है कि ये हुकूमत एक ऐसी है जो ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। असल में जो को TLP ने इनके साथ किए वही इनके साथ करेगी ये कौम, तब ये राय रास्ते आएंगे। चलिए इधर रुकिएगा, मेरी आखिरी जुमला जी। EVM पे जब तक कंसेंसस नहीं होगा किसी सूरत भी इस मुल्क के अंदर कोई जबरदस्ती इलेक्शन नहीं करवा सकता। चले इधर रुकिएगा नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा। कौमी सलामती कमेटी पार्लियामान की उसका इजलास है, लेकिन अपोजिशन ने बायकॉट कर दिया। अपोजिशन का मौकफ है कि चूंकि कायदे ऐवान जो वजीर आजम है वो नहीं आते तो हम भी नहीं आएंगे। अब सियासी लड़ाई कौमी सलामती के अमूर की तरफ जा रही है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं इस पे बात करूंगा ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। सरदार लतीफ खान खोसा साहब, कौमी सलामती तो पॉलिटिक्स से अबव है, उससे जुड़े जितने अमूर हैं, वो फॉरेन पॉलिसी की तरफ से हों, वो इंटरनल सिक्योरिटी के हों, वो सारी सियासी जमातों से मुतल्लिका हैं। अब 6 दिसंबर को कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास होना था, अपोजिशन ने आज बाइकआउट कर दिया। देखें फराजा साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत संजीदा मसाला है। जहां कौमी सलामती का सवाल आए वहां जो लीड लेना होती है वो लीडर ऑफ द हाउस को, वजीर आजम को लेना होती है। वजीर आजम ने बहुत सारे आके उस कौमी सलामती में जिसमें सारी ऑपोजिशन भी और सारी सियासी जमातें हों, वहां बहुत सारे जो सवालात थे जिनका वजीर आजम ने जवाब देना था, अस्करी क़यादत ने जवाब नहीं देना था। देखिए, वजीर आजम से ये पूछना मकसूद था कि आपने TLP को आपने बैन करार दिया, आपने दहशतगर्द तंजीम करार दिया, आपने रॉ के एजेंट करार दिया, आपने हिंदुस्तान के उनको जो है गुमाश्ते करार दिया, आपने उन पर जो है उनको पाबंद सलासल करके बंद किया, और 2 दिनों के बाद उस फैसले के बाद जो है आप कोई और फैसला करता है और वो जो है बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं, उन पे सारा कुछ जो है खत्म हो जाता है। वो कातिल भी नहीं रहते। जो 9 बेचारे पुलिस वाले मारे गए, जिनके बच्चे यतीम हुए, बेवा हो गई, माएं उजड़ गई, गोदे उजड़ गई, उनका तबाह हो गए पाकिस्तानी, उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो भी सब साफ हो गया, वॉश आउट हो गया। ये किससे पूछे? ये अस्करी क़यादत से पूछने वाली चीज नहीं थी। फिर इसी तरह जिस तरह बिलावल भुट्टो ने पिशावर के जलसे में भी कहा, आप तहरीक तालिबान से कैसे बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहा है? आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो वजीर दाखिला कहता है मुझे पता ही नहीं है क्या मुआहदा हुआ है या क्या हो रहा है। यानी आप किससे पूछें? अगर वजीर आजम नहीं आते, मुझे बताएं फराजा साहब, तो 80,000 पाकिस्तानियों का खून किसके साथ है? रानी शहीद बेनजीर भुट्टो के कातिल जो है वो उनके साथ आप बात कर रहे हो, वो मुल्जिम थे उसमें, आपको पता ही है। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी के पेशावर जलसे की बात की। अब फवाद चौधरी साहब ने तो बाकायदा मुबारक दी, इनकरेज किया कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन आज अचानक फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान परेशान से नजर आए, उन्होंने एडवर्स बयान दे दिया। तो क्या आपने कोई ज्यादा प्रेशर डाल दिया है? देखें यार, क्या हम जब बात करते हैं, अगर इनका पंजाब का जो है सदर PTI का जाके उसको हार पहनाता है और मुबारकबादियां देता है, जिसको हुकूमत वफाकी हुकूमत पता नहीं क्या क्या हल्का बात दे के उसको पाबंद सलासल करके अंदर किया, और फिर जिन्होंने एक चोक करने की कोशिश की, अगर ये पता नहीं घुटने टेके हैं, इन्होंने क्या किया है मुझे समझ नहीं आ रही है। लेकिन आपने शुरुआत की थी ये कौमी सलामती के इजलास की। कौमी सलामती के इजलास में वजीर आजम का होना लाजिम है। उसके बगैर कौमी सलामती का आप क्या तस्वर करते हैं? हम क्या करने जाएं? क्या हम आर्मी चीफ से पूछें जी बताएं ये क्या हो रहा है? आर्मी चीफ देखें, आर्मी चीफ को या आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये हुकूमत के ताबे होती है, वो रियासत के ताबे होती है, लेकिन हुकूमत और रियासत नहीं होती।
अगर रियासत है या हुकूमत है तो वजीर आजम को आके जवाब देना है उसका। वजीर आजम नहीं आएंगे तो आप हमसे तवक्को न कीजिएगा कि हम उसमें जाएंगे, ऑपोजिशन जाएगी। तो इसलिए पहले वजीर आजम अपना तरीका ठीक करें, अपना वसीरा ठीक करें, अपने आप को वजीर आजम पाकिस्तान समझें, अगर हैं तो वो बाकी समझें, और फिर आके ये सियासी फैसले भी करें और अपना जो है दिखाएं कि इख्तियारात वजीर आजम के पास है और जमहूरियत है इस मुल्क में। जी इधर रुकिएगा। सैयद अमीनुल हक साहब, आप उसी काबीना के इजलास में मौजूद थे जिसमें वुज़रा को बाहर जाने से मना कर दिया। ये कोई खास सिचुएशन कोई पैदा हो रही है, कोई खतरा है, क्या माजरा है? देखिए, ये तो ज्यादा बेहतर तरीके से वज़ीर आज़म साहब इसका उनके ध्यान में क्या है वो बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यस ऑस्टेरिटी ड्राइव वज़ीर आज़म के ध्यान में मौजूद है कि बचत की जाए, और मेरा हाल है कि यस अगर कम से कम लोग दौरे पे जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई वेरी इंपॉर्टेंट दौरा है, और अब आपको पता है कि ये जो ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं, हमें जरूरी नहीं है कि हम बिना मुल्क दौरे पे जाए, बल्कि वीडियो लिंक के जरिए हम, मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों से राब्ते में रहते हैं। और अब तो हमने कोविड-19 ने क्या सिखाया है कि आप अपने ऑफिस में बैठकर सारे डिजिटल वर्ल्ड से मुंसलक हो सकते हैं। तो यस मेरा ख्याल है, अगर टेक द एग्जाम्पल है मिनिस्ट्री ऑफ IT, तो मेरा ख्याल है कि मुझे 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, मासवा एक दौरे के किसी दौरे पे नहीं गए। क्यों? क्योंकि हर जगह पर मैं वीडियो लिंक से मुंसलक हो जाता हूं, अपनी बातें उन तक पहुंचाता हूं, उनकी बातें आपने वजाहत कर दी, लेकिन ये फरमाइए, कौमी सलामती के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास होना था। अब वजीर आजम मतलब है PTI के चेयरमैन के साथ साथ कायद ऐवान है, यानी पूरे ऐवान के वो कायद हैं। इस हसास मामले पर जिसका बराह रास्त ताल्लुक कौमी सलामती से है, वजीर आजम नहीं आते, आज अपोजिशन ने बायकॉट कर दिया। वजीर आजम को ऐसे हालात में, ऐसे मामलात में आना चाहिए कमेटियों में, क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, एक सियासी वर्कर होने के नाते बिल्कुल मेरी ख्वाहिश ये बिल्कुल होगी कि यस वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ऐसी इंपॉर्टेंट कमेटी में बैठना चाहिए, लोगों की बातें सुननी चाहिए। और हम सियासी लोग करते क्या है कि जब तनकीद अपने पर होती है तो हम उसको खुशदिली के साथ कबूल करते हैं, पर उसका जवाब देते हैं। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन का ये कहना है कि कौमी सलामती कमेटी में ना आना, मैं समझता हूँ बाहिश तशवीश है। उन्हें अपने फैसले पे दोबारा गौर करना चाहिए, क्योंकि ये किसी की जात या किसी के पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, रियासत की बात होती है, कौम की बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें अपने फैसले पर गौर करना चाहिए, ऐसी कमेटी में लाजमी तौर पर शरीक होते रहना चाहिए। जी मुर्तजा अब्बासी साहब, शरीक होना चाहिए, अपोजिशन का आना ना आना बायस तशवीश है। आज आपका इजलास था, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात हुई। अगर वजीर आजम नहीं आते तो अपोजिशन को तो आना चाहिए, अपना पर्सपेक्टिव देना चाहिए, सुनना चाहिए। आज जो मौकफ अपोजिशन ने सामने रखा है वो बड़ा वाज़ेह है, और इससे पहले जो 3 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें ब्रीफिंग हुई है, देखें वज़ीर आज़म ने जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो उस वक्त भी उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, और उस वक्त अस्करी क़यादत ने इस चीज को महसूस भी किया कि आज सारी सियासी क़यादत को एक पेज पे होना चाहिए था। उसके बाद 3 मीटिंग्स हुई हैं, तीनों पे ये अपोजिशन की तरफ से, मुल्क की सारी सियासी क़यादत की तरफ से जब ये मुतालबा भी आया और एतराज भी हुआ, उसका जवाब देने वाला उस मीटिंग में कोई भी नहीं था। तो फिर आप जब चौथी दफा हो चुकी है ये, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म की। अपोजिशन ने अपना पूरा फर्ज निभाया, एक तरफा तौर पे नहीं, आज तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोइज यूसुफ पर भी एतराज़ात उठा दिए कि 2 साल पहले वो नहीं थे, लेकिन अब तो वो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। वो कल ही रूस वालों से मिले हैं, रूसी सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले हैं। नहीं, हमें तो बहुत से सवालात हुकूमत और वज़ीर आज़म से करने हैं, तो क्या उनके जवाबात इससे पहले तो किसी मीटिंग में वो नहीं दे सके। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत नहीं चाहती, वज़ीर आज़म खुद नहीं चाहते कि कौमी जो इश्यूज हैं, जो थ्रेट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उस पर कंसेंसस हो। मेरा जाती ख्याल ये है, अपोजिशन ने, देखें बड़ी वाज़ेह बात है कि 4 जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें शरीक हुई है अपोजिशन। कोई इतराज नहीं, हर मीटिंग में इतराज होता रहा है कि जी वज़ीर आज़म क्यों नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा कि क्यों नहीं है। और बहुत से ऐसे सवालात थे जो वज़ीर आज़म ने देने थे, ना उनका कोई कैबिनेट का वजीर दे सका है, ना ही अस्करी क़यादत दे सकी है। बल्कि अब तो ये इन कैमरा मीटिंग है, मैं वो बात कह नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी ओहद का पाबंद हूँ।
यकीन मानिए ये बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है कि अब वज़ीर-ए-आज़म आएगा नहीं तो वज़ीर-ए-आज़म की जगह कौन जवाब देगा। और फिर देखें, आप आज हुकूमत के कैबिनेट के वजीर से ये पूछें कि वो ये तो कह रहे हैं कि अपोजिशन को आना चाहिए। अपोजिशन तो 4 मीटिंग में आई है, अब 5वीं है कि 4 में वज़ीर-ए-आज़म नहीं आए, तो उस हवाले से नहीं, वजीर साहब अभी आपके सामने अमीनुल हक साहब फरमा रहे हैं ना कि एज अ सियासी वर्कर मेरी ख्वाहिश है कि वज़ीर-ए-आज़म आए, वो तो बार बार कह रहे हैं ना। ये देखें, गैर जिम्मेदारी है वज़ीर-ए-आज़म की। जब मैं दोबारा दोहराता हूं कि वो इंसिडेंट हुआ था बालाकोट वाला, उससे सेंसिटिव सूरत-ए-हाल कोई भी नहीं थी मुल्क में। वहां सब चीजें बुला के एक तरफ रख के देखें, APS वाला मामला हुआ था, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने सारी सियासी क़यादत को एक टेबल पे बिठाया और उस वक्त इमरान खान साहब जो बिल्कुल सियासत से बाहर थे उनको भी बिठाया। सियासत से बाहर कहाँ थे? धरना लगा हुआ था इस्लामाबाद में। जी देखिए, वो सियासत से बाहर ही समझे ना, वो तो उस वक्त जमहूरियत को, पार्लियामेंट को और सिविल नाफरमानी की बात कर रहे थे। वो तो हुंडी का कह रहे थे कि हुंडी के जरिए पैसे लाने चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग का कह रहे थे और कह रहे थे कि सिविल नाफरमानी करें। वो बिजली के और गैस के बिल चला रहे थे। उन्होंने तो बजाते खुद वर्दी का गिरबान, एक पुलिस वाले का गिरबान तक पकड़ा जो कि इनके वर्करों को अरेस्ट करके लेके जा रहा था। तो ये बहुत सी चीजें हैं, सवालिया निशान है। ये अलमिया है पाकिस्तान का, एक ऐसी जमात और एक ऐसा लीडर हम पे मुसल्लत किया गया है जिसको ना कौमी मफाद और ना कौमी जिम्मेदारी का एहसास। चले, बहुत शुक्रिया साबिक डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, आपने वक्त निकाला। सरदार लतीफ खान खोसा साहब, बहुत शुक्रिया, साबिक गवर्नर पंजाब, आपने वक्त दिया। सैयद अमीनुल हक साहब, वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।